This one was given to do. This one was given you. It's all about discipline. It's all about discipline. ये discipline के बारे में था. Comprehension. This comprehension is about discipline. कि how important the discipline is. कितना important ये discipline हमारे life में है. कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है. ओके गाइस, चलिए आप में से कोई पढ़ो जल्दी से, फिर से एक बार ये रिवाइज हो जाएगा. पढ़ो बेटा. चंद्र प्रकाश, गो थ्रू द रीडिंग. डिसिप्लिन फॉर डेमोक्रेसी. चंद्र प्रकाश, आर यू लिस्निंग टू मी? बेटा सुन रहे हो मेरी बात? चंद्र प्रकाश, आर यू लिस्निंग टू मी? सर नहीं हो क्लास में. अच्छा, गायब हो गया. देखो क्वेश्चन पूछा कि गायब. कुछ भी पूछो तो गायब हो जाते हैं बच्चे. समझ नहीं आता क्या. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज गाइज? तो एक तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आता है. फोन करो तो कहते हैं कर लेंगे, करेंगे करेंगे कल से. कोई नहीं बेटा. कौन जुड़े हुए हो? हर्ष, हर्ष, प्रियांशु, एनीबडी? जस्ट रीड. Discipline for democracy, development, and decency in public life needs no retention, nor does it requires and any expect to expose its cause for personal cause and social solidarity. Discipline should be the order in the public life. It is the crying needs of our more than every. Even before discipline stands from training a special of the mind and character, especially of the mind and character, aimed at producing self-control, audience in the face of temptation or provocation. Discipline in public life ensures. Discipline in public life ensures peace and harmony, which in turn offers impetus. क्या पढ़ेंगे इसको? टर्न. ठीक है. Turn offers impetus to the forces of grace of program and prosperity. No country, big or small, can afford to play duck cry in the wilderness. A pompous promise if the powers that be fail be comprehend and carry out the decades of discipline at all cost and in all situations. With discipline as way of life, all plans, policies, and programs are bound to bear fruits. Whenever people in public life or in private enterprise is dilute demands of discipline, most aspirations and achievement go astray, leading to failure and
frustration at various level. Discipline for country like India, which is standing at the threshold of economic breakthrough and a stu- stupendous store of opportunities. It is the most immediate and urgent prerequisite Prerequisite है बेटा, prerequisite, prerequisite, prerequisite uh, discipline for rulers, and the role is an essential ingredient if we witness in field and factories the recent outbreak of Palgu and the wrong signals that these limited epidemic sent across the world was not an act of God as some would like us to believe. It was the painful result of un- unpardonable negligence on the part of civic authorities. The woeful way the ru- result routine calls of duty and discipline by paid public servants were given a go by is a matter of crying shame for one and all. The heaps of garbage in uh, towns, cities, and were metros were allowed to rot, and their removal left to rag pickers speak volumes for the callous attitude towards discipline and devotion to duty. It is high time that we sit up and do service it searching okay the क्या? which Hmm. with which state Yes, students, say. the case with which state opposition suppressed bandage and organized in our country is another area of concern with discipline in public life under a cloud. The entire score economic momentum is brought to grading after when such is the sadistic approach towards discipline. There is nothing that can come to our rescue if some bigger mm, calamity overtakes in us in future. The ठीक है बेटा, remedy कॉमिटी ऑफ नेशंस. चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन. See guys, first question comes to you. What is the advantage of discipline in public life? पब्लिक लाइफ में डिसिप्लिन का क्या फायदा है? तो देखिए क्या करता है, पीस और हार्मनी वाला है. देखिए यहाँ पे see, discipline for democracy, development, decency in public life needs no retaliation, nor does it require any expert to espouse its cause for personal post and social solid. Discipline should be the order in public life. It is the crying need of the hour more than. तो क्या क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, प्रोवोकेशन, ये सारी चीजें होती है. ये देखिए, डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी. यहां से हमारे आंसर की शुरुआत होगी कि पीस और हार्मनी को अगर ये करना है तो इसमें इसका बहुत योगदान है.
कौन कर रहा है? Why don't you सर take care? अमन। अरे बंद कर लो ये सारी चीजें। तो सी गाइस, come on to the question. Question से अब आंसर बनाते हैं। What is the advantage of the discipline in public life? तो क्या फायदा होता है उसको लिखते हैं। Discipline in public life ensures peace and harmony. पीस एंड हार्मनी को इंश्योर करता है, which in turns, जो बदले में, which in turns, जो बदले में in turn offers, क्या हमें देता है? offers impetus to the forces of prosperity. बेटा ये कहां से, किससे ये आवाज आ रही है? Why don't you take care? आप क्यों नहीं रोक रहे हो ये सारी चीजें? Who is this? सर कॉनी बैरू नाम से आईडी है। क्या नाम है? कॉनी बैरू। कॉनी बैरू। ये कौन नया आ गया है भाई? सर ये अमन था। लीव कर दिया। अभी लीव किया उसने। क्या नाम था? अमन। किस क्लास का है ये? बेटा किस क्लास का था ये? चैंपियन का था या एक्सीलेंस का? सर एक्सीलेंस में नहीं है अमन। चैंपियन में होगा, क्योंकि आज तो 2 की ही क्लास है ना, या तो चैंपियन की है चैंपियन में अमन, सर अमन चैंपियन में भी नहीं है। कोई नहीं बेटा, देखो इसको। तो ये देखिए इस सर ये आंसर को समझिए, इस आंसर को। डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ एंश्योर्स, अगर पब्लिक लाइफ में डिसिप्लिन होगी तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? पीस और हार्मनी आएगा। और जब पीस और हार्मनी आएगी, यानी कि शांति होगी, सहृदयता होगी, तो उससे क्या बढ़ेगा? विच इन टर्न, जो बदले में ऑफर्स इम्पीटस टू द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता देगा, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए रास्ता बनाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डिसिप्लिन इज डाइल्यूटेड इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ? जब पब्लिक, यस, ये क्वेश्चन लिखने हैं। बेटा ये तो मैं आपको खुद से बना के रखने के लिए कल वाले काम में कहा था, है ना? हाँ ये लिखनी। हाँ देखो अगर आपका मिलता जुलता है मेरे आंसर से, थोड़ी बहुत कमी है, तो आप उसी में काट के वहां पर ये सारे शब्द ठीक कर लो। और अगर ज्यादा अंतर है, आपके आंसर और मेरे आंसर में ज्यादा का फर्क है, तो आप अपने आंसर को काट के फिर मेरा आंसर लिखो, या अपने आंसर के साथ मेरा आंसर भी लिखो, तब आप देख पाओगे ना कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे आंसर और आपके आंसर के बीच में क्या फर्क रहता है, तब देखोगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो तभी तो पता चलेगा ना कि आप क्या सोच रहे थे और मैंने उसका करेक्ट आंसर क्या बताया। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, तो डिसिप्लिन अगर सामाजिक और पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जब डाइल्यूट होने लगता है, यानी कमजोर पड़ने लगता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या उसका घाटा होता है? तो अब इस लाइन को हम खोजेंगे। अगर आपको पता है, याद है, तो फटाफट मुझे बता दोगे तो मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा वहां पे। ये डाइल्यूटेड वाला पॉइंट है, मुझे याद तो है।
अब ये खोजना पड़ेगा मुझे। ये कुछ अचीवमेंट और एस्पिरेशंस वाला था सेंटेंस। ये देखिए, ये लाइन आ गया ना, वेन एवर पीपल इन पब्लिक लाइफ और इन प्राइवेट एंटरप्राइज डाइल्यूट द डिमांड्स ऑफ डिसिप्लिन मोस्ट एस्पिरेशंस, एंड ये वाली लाइन हमारा मेन आंसर है। अब देखिए, इसको मैं क्वेश्चन से ढालूंगा। क्वेश्चन से पहले पिक करूंगा मैं कि when discipline is diluted on public or private life, when, क्वेश्चन से लेते हैं पहले, when discipline is diluted in private or public life, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, जब प्राइवेट और पब्लिक लाइफ से ये डिसिप्लिन डाइल्यूट होने लगता है, कमजोर होने लगता है, पब्लिक लाइफ, most aspirations and achievements go astray. Most aspirations and achievement most where was it, say, most aspirations and achievements go astray, यानी बेकार हो जाता है, बेकार की चीज साबित हो जाती है, एस्ट्रेज, लीडिंग टू फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, लीडिंग टू, 2 नंबर का आंसर है इसलिए, लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशंस, लीडिंग टू फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, या फ्रस्ट्रेशंस एंड फेलियर बोथ कैन गो, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर लाता है ये एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस levels. Third question, see the third question, why is discipline important for India? अब भारत के लिए पूछा है कि डिसिप्लिन क्यों भारत में जरूरी है, क्योंकि भारत में देखिए especially where India's talk is going on, there you just find out and try to ensure me, बताइए कहां पर इंडिया के बारे में स्पेशली जहां लिखा हो वहां से हम क्वेश्चन को उठाएंगे। डिसिप्लिन फॉर कंट्री लाइक इंडिया which is standing at the threshold of economic breakthrough and a stupendous store of opportunities, it is the most immediate and urgent prerequisite. इसी से हम अपना आंसर को बनाएंगे। ओके गाइस, ये वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर छुपा हुआ है, देखिए डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, डिसिप्लिन इज द, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मोस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर इंडिया, भारत के लिए एक उपयोगी इंग्रेडिएंट की तरह है, इंडिया के लिए एक उपयोगी इंग्रेडिएंट की तरह है। किस लिए देखिए, बिकॉज
we stand at the, या we are standing at the threshold, हम बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं, threshold of economic breakthrough and a stupendous मतलब मुश्किलों से भरा हुआ, मतलब कठिनाई वाला, stupendous store of opportunities. These are some of the questions. One more question is left. One more question I am going to write. See girls, you can write. See girls, write down. और अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो बाद में भी आप देख सकते हो, बाद में अपना वीडियो देख के देख लेना. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड राइट नाउ. अभी खूब अच्छे से समझिए कि मैं कैसे चेंज ला रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं आंसर्स को. यू शुड गो थ्रू. व्हाई इज द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक मोमेंटम ब्रॉट टू ए ग्राइंडिंग हाल्ट. पूरा जो सोशियो इकोनॉमिक जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है मूवमेंट, वो पूरा का पूरा ऐसे आ गया है, ग्राइंडिंग हार्ट पे पहुंच गया है, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ चकनाचूर हो गया है और जैसे वो रुक सा गया है, हार्ट हो गया है. See guys and girls, our answer is here. See, with discipline in public life under a cloud, the entire socio-economic momentum is brought to a grinding halt. When such is the sadistic approach towards discipline. अगर हम sadistic approach अपनाते हैं discipline के तरफ, यानी कि discipline की कमी, कुल मिलाकर हमारे आंसर का जो मेन हिस्सा है वो है lack of discipline. अगर discipline की कमी होती है, किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर डिसिप्लिन की कमी होती है, तभी जाके जो है सो परेशानी बढ़ती है. अभी देखिए, अभी जो एपिडेमिक आउटबर्स्ट हो रखा है, जो कुछ भी ये, तो इसमें जो लोगों को सलाह दी जाती है, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो ऑब्वियसली परेशानी झेलना पड़ता है, तो रोग बढ़ते हैं. लेकिन अगर सब ये चीज, एज ए स्टूडेंट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि आप भी अब स्कूल खुल रहा है तो आप उसके हिस्सा बनने वाले हैं. So you should follow the discipline. You should follow discipline at every level. Otherwise, discipline is not followed properly. It will be a problem for all. तो उसी के लिए आप यहाँ पर देखिए कि entire socio-economic momentum जो है क्यों grinding hard पे चला जाता है, because of the lack of discipline. Discipline की कमी की वजह से. So I am rubbing the first answer. First, second as well. See, fourth answer comes to you. Its main answer is lack of discipline. Lack of discipline, यानी discipline की कमी. Lack of discipline यानी डिसिप्लिन की कमी के कारण, डिसिप्लिन की कमी से, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ है ना, इसी के लिए ध्यान दे, विद डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ अंडर अ क्लाउड, यानी कि जब डिसिप्लिन नहीं होगी तब के लिए कहा है. तो लैक ऑफ डिसिप्लिन हम उसको कहते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ. लैक ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में अगर डिसिप्लिन की कमी होती है तो पब्लिक लाइफ brought the entire
एंटायर यानी कि पूरा का पूरा जो सोशियो इकोनॉमिक मोमेंटम है, सोशियो इकोनॉमिक मोमेंटम to a grinding halt, ये पूरे की पूरी जो पूरा सिस्टम है वो रुक जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम समाप्त हो जाता है। नाउ सी टुवर्ड्स दीज क्वेश्चंस, ये सिनोनिम्स खोजने के लिए था। देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, सॉरी बोस्टफुल। बोस्टफुल कहते हैं जो डींगे हाँकने वाला होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, उसको कहते हैं बोस्टफुल। अब इसमें देखिए क्या है, प्रोग्रेस का मतलब विकास होता है, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, पीस मतलब होती है शांति। अभी तक तो इन तीनों का मीनिंग बोस्टफुल से नहीं मिलता जुलता है। तो लास्ट वन इज पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, और ये जो है यही हमारा आंसर बनेगा इसका, पॉम्पस। ओके, सी द नेक्स्ट वन गाइस एंड गर्ल्स, अंडरस्टैंड। अब बताइए अगर आपको समझ आ रहा है। आई थिंक आरती, कैन यू स्पीक? आरती, कैन यू आंसर? बेटा आंसर दे सकते हो इसका, अंडरस्टैंड का? यस सर। बोलिए क्या आंसर है आपका इस 4 में से? हार्मनी। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। अब बताइए 4 में से कौन? कॉम्प्रीहेंड, हार्मनी, एसेंशियल या जस्टिस? कंप्रीहेंड या फिर हार्मनी में से। अच्छा चलिए, आई कैन सी पारुल इज ऑल्सो सेइंग। पारुल, व्हाट्स योर आंसर? बेटा ये बताओ, ये आरती ने कहा है कॉम्प्रीहेंड और हार्मनी, आपके हिसाब से कौन सा आंसर है? सर हार्मनी। बेटा हार्मनी नहीं होगा, कॉम्प्रीहेंड होगा। ये देखिए अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन ना। कॉम्प्रीहेंशन Yes, का sir. मतलब यही होता है समझना, यानी जो आपको पैराग्राफ या स्टेंजा दिया गया है उसको आप कितना समझ रहे हैं और उस पर बेस्ड आप आंसर बना रहे हैं, यही है कॉम्प्रीहेंशन। और उसी के लिए पूछा है कि अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होगा, तो कॉम्प्रीहेंड इज द मीनिंग। डिजायर, लोकेश कुमार बताइए। डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना। एसेंशियल, स्टुपेंडस, एस्पिरेशन या ब्रेक थ्रू, क्या आंसर होगा? रिपीट करना। डिजायर का बेटा ये तीसरे का मैं आंसर पूछ रहा हूं। डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना, तो कौन सा वर्ड इसमें आंसर बन रहा है आपका? सर ऑप्शन आपके सामने है, एसेंशियल, स्टुपेंडस, एस्पिरेशन या ब्रेक थ्रू। एस्पिरेशन। बिल्कुल सही जवाब है, एस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर। एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। बताइए क्या इसमें आंसर बन रहा है, मोमेंटम, सैडिस्टिक, रेस्टोरेशन या ऑपोजिशन? इनह्यूमन, अमानवीय, इसका मतलब अमानवीय। ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है बेटा विरोध में, और हमें यहाँ इनह्यूमन बताना है यानी अमानवीय। सर सैडिस्टिक। बिल्कुल सही जवाब है, सैडिस्टिक इज द राइट आंसर। सैडिस्टिक इसका सही जवाब होगा। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन बनाने का मैंने तरीका आपको समझाया। और अभी तो खैर मेरे पास, और आई हैव नॉट चोजन। अब मैं आपके साथ, आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग मैं स्टॉप कर रहा हूं। एंड नाउ
स्टूडेंट्स, अब बताइए और क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ और सेंटेंसेस आपके साथ अभी शेयर करूं। 10 मिनट बचा हुआ, 7-8 मिनट और है क्लास हमारी, तो कुछ सेंटेंसेस मैं शेयर करूंगा आपके साथ जो आप बनाएंगे, वो आप बनाएंगे, मैं पहले नहीं बनाऊंगा, वो आप पहले बनाएंगे, देन आई विल, आप सही बनाए या गलत वो मैं आपको समझाऊंगा। Change the narration into इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए देखिए, I said to her, why are you late today? She अरे यार मैं कर दो साला लोकेश कुमार क्यों आवाज आ रही है? Who is talking like this? ये कौन है? How do I know? Who is this? कौन ये इस नाम से किया हुआ है ज्वाइन? Just show your face. Just show your face. Who is this? ये कौन है बेटा? How do, ये HD नाम से कौन ज्वाइन कर रखे हो? You are just creating a problem for us. ये कौन है? आपको बताया गया ना आपको अपने नाम से ज्वाइन करने के लिए। कौन है ये? How do I know? Is she late today? एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा सोच के बनाइएगा कहां से टेंस चेंज करना है और क्या करना है। दो रूल्स को याद रखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन है तो सेट तो लगेगा नहीं ना, क्वेश्चन है तो किस में बदलोगे? आस्क्ड में ना। Yes, sir. आई आस्क्ड हर, सबसे पहले इसको बदलोगे, ये पूरे को आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर, और WS पे है तो कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सीधा आई आस्क्ड हर, ये कुछ नहीं करना है, इसके लिए कुछ नहीं दो। व्हाई, अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बदलो, यू, बताओ क्या बदल के लाओगे? यू को किससे बदलोगे? यू को बदलोगे हर से, तो हर जो है सब्जेक्ट सी बना लेगा, शी, वाई सी। अब यहाँ पे आपने कहा था इज कैसे लगाओगे? यहाँ पर टेंस तो आपका पास्ट टेंस है ना, ये आपका पास्ट टेंस है, तो इधर भी टेंस चेंज करोगे ना, सी वॉज लेट टुडे, और टुडे बदल के क्या हो जाएगा? दैट yesterday. नहीं, That टुडे बदल के दैट डे। आगे देखिए, शी सेड टू मी गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग ए पेन फॉर मी। ये देखिए कैसा सेंटेंस है, ये है, बताइए सेंटेंस का टाइप बताइए पहले, कैसा सेंटेंस है? स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है या इंपरेटिव है? कैसा सेंटेंस है ये? सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, क्या है ये? इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले तो यहाँ आप सोचिए क्या किए हैं। अगर लग रहा है हमने ऑर्डर दिया है उसको, तो told, ordered, I ordered, she ordered me। और अगर कंफ्यूजन लगे, ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन लगे कि वो मुझे ऑर्डर दी होगी कि नहीं, तो वहां पे आप टोल्ड लगा दीजिए, तब आप इंपरेटिव सेंटेंस में भी टोल्ड लगा सकते हैं। लेकिन जब क्लियर लगे कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तब तो वहां पे आप उसी हिसाब से बनाओ। शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी, क्या दैट लगाएंगे बेटा? दैट लगाएंगे यहाँ पे? no sir. तो क्या लगाएंगे? शी ऑर्डर्ड मी टू
go to the market and bring a pen pen for her. मी बदलेगा सी से, मी फर्स्ट हर। पर्सन का है, सी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, मी की जगह हर, है ना। इसी तरह से आई Yes, sir. व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है तो क्या बन जाएगा आस्क, Asked. आई आस्क्ड हर, WH है, What कुछ नहीं करना है, व्हाट, was ना 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 ऐसे नहीं, व्हाट के बाद अब सब्जेक्ट लाओ पहले, ये योर नेम को बदल के योर हर से चेंज हो जाएगा, तो हर नेम, her name? व्हाट हर नेम, तब ये आपका Was. इस बदल के वाज हो जाएगा, तब फुल स्टॉप लगाएंगे। She said to me, where are you going? बनाइए इसको। She asked me Yes. where Where